Hello everyone, now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is impact of agricultural waste. The particular topic is related to B.Ed semester 4 special paper, that is issues of conservation and environmental regeneration, and the unit is number 2. इसके पूर्व के वीडियो में मैं एग्रीकल्चरल वेस्ट दैट मीन्स जो कृषि के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने इससे संबंधित कुछ पॉइंट का डिस्क्रिप्शन विस्तार से बताया था। मैं आज इसके और जो रिमेनिंग पॉइंट है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एग्रीकल्चरल वेस्ट दैट मीन्स इसके जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, स्पेशली दैट मीन्स रिलेटेड टू द सॉइल पोल्यूशन, सॉइल फर्टिलिटी, impact of plants, impact of animals and impact of crops also and so on point। कहने का तात्पर्य है जो कृषि के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका मुख्य रूप से प्रभाव सॉइल यानी जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ मिट्टी की जो उर्वरा की क्षमता होती है वह कम हो जाती है। मिट्टी जो है वह पूरी तरह से प्रदूषित हो सकता है। मनुष्य पर भी प्रभाव पड़ता है, जो या जानवर हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है, मवेशी जो कहलाते हैं। साथ ही साथ पौधों पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा जो क्रॉप यानी खेती योग्य जो भूमि होती हैं या जो जिस खेती में या जिस भी जगह पर हम लोग खेती करते हैं या उस प्रकार के जो फसल होते हैं वो भी पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। तो मैं अब आपको और इसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now again welcome to video lecture class B.Ed semester 4 paper 13 optional paper issues of conservation and environmental regeneration. The remaining point of impact of agricultural waste. Number 4, a decrease in crop yields. Number 5, soil pollution and depletion of soil fertility. Number 6, air pollution. Number 7, biodiversity loss. Number 8, water pollution. Number 9, impact on animals. And number 10, effects on plants. First, a decrease in crop yields. The excessive use of fertilizers and pesticides combined with other agrochemicals control invasive pests, weeds and diseases and produce large crop yields. Since they remain in soil for years, in long run crop yields are reduced and the soil loses the optimal characteristic to produce crop due to agricultural pollution. Now next point, soil pollution and depletion of soil fertility. The agricultural pollution contaminates soil that leads to soil pollution and depletion of soil fertility by killing soil microorganisms. The chemicals that are part of pesticides and other different kinds of agrochemicals can cause long lasting damage to the soil. Now next one is air pollution. Agricultural pollution also leads to air pollution. Many machines such as tractors or harvesters used for tilling, harvesting and other farm activities emit harmful greenhouse gases like CO2 by combusting fossil fuel, which in turn can lead to global warming. Now moreover, farm animals and fertilized soil emit large amount of carbon and nitrogen based compounds such as nitrogen oxides and ammonia that qualify as the potential greenhouse gases, and methane considered as one of the most harmful greenhouse gases. Now next, biodiversity loss. An ecosystem is quite sensitive to a small changes that may lead to big effects in the natural ecosystem. The persistent use of chemical products in agricultural production degrades and destroy the soil and waters, affect animals, plants and wildlife, gradually altering the ecosystem which support biodiversity. Furthermore, the use of pesticides can kill beneficial insects, soil microorganisms, birds and some rare small species like butterflies, which have far-reaching effects on biodiversity. And some chemicals also remain in the soil for many years. The if highly, that means effect
the biodiversity in a massive way. Now, next one is water pollution. Water pollution is another big problem caused by agricultural pollution. Agricultural operations and practices such as inappropriate water management and irrigation mainly lead to water pollution from soil, water pollution from surface runoff both to surface and groundwater. The excessive use of fertilizer and pesticides, many harmful substances reach our lakes, rivers, and eventually the groundwater, leading to widespread contamination of waterways and groundwater, and also depreciate water quality. Now, next, number 9, effects on animals. Effects on animals. The fact is that agricultural pollution can also have adverse effects on animals. Since animals consume parts of the crop yield, they are heavily affected by pesticides and can even die from the consumption of these contaminated crops. Now, number 10, effects on plants. Agricultural pollution can even change the dynamics of the whole ecosystem, as it becomes a problem for parts of the local plants, since new invasive species could impact the population of native species in an adverse way. These invasive species can carry pests and diseases which can harm the local ecosystem. The local native plants can also be affected by the use of genetically modified organisms in the form of crops, leading to genetic contamination. This could also lead to extinction of native species. अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। इसके पूर्व के वीडियो में कृषि अपशिष्टों के प्रभाव के कुछ पॉइंट, यानी 3 पॉइंट शुरू के मैं इसके पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। तो कृषि अपशिष्टों के प्रभाव के अंतर्गत जो 3 पॉइंट थे पूर्व में मैं बता चुका हूं। आज मैं नंबर 4 से शुरू करने जा रहा हूं। नंबर 4, फसल की पैदावार में कमी। नंबर 5, मृदा प्रदूषण और मृदा उर्वरता का अभाव। नंबर 6, वायु प्रदूषण। नंबर 7, जैव विविधता हानि। नंबर 8, जल प्रदूषण। नंबर 9, जानवरों पर प्रभाव। नंबर 10, पौधों पर प्रभाव। अब एक एक करके मैं थोड़ा इसे स्पष्ट करूं। फसल की पैदावार में कमी। बहुत सारे उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से कीट या खरपतवार, खासकर जो वैसे कीट जो कि कहीं न कहीं फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और बीमारियां जिससे कि कुछ हद तक नियंत्रित होती हैं, बड़ी फसल की पैदावार होती है। हालांकि इन पदार्थों के सकारात्मक प्रभाव एक निश्चित समय के लिए रहते हैं, परंतु कुछ रासायनिक तत्व अत्यधिक समय में उपयोग हो जाने के कारण ये मिट्टी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। अतः ये अत्यधिक समय तक खेतों में रहने से उनका प्रभाव जो है वह कहीं ना कहीं मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है और फसल की पैदावार में कमी हो जाती है। इस प्रकार से मिट्टी जो कि कृषि कार्य के लिए उपयोगी रहती है वह धीरे धीरे प्रदूषित हो जाती है। दूसरे पॉइंट में मृदा प्रदूषण और मृदा उर्वरता का अभाव। कृषि प्रदूषण मिट्टी को दूषित करता है, जो मिट्टी के प्रदूषण की ओर जाता है और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को मारकर मिट्टी की उर्वरता को कम करता है। कीटनाशक और विभिन्न प्रकार के कुछ केमिकल्स यानी रासायनिक जो तत्व होते हैं, रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, वह कहीं ना कहीं मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। धीरे धीरे मिट्टी को ये रासायनिक जो पदार्थ होते हैं वह उनकी उर्वरा की क्षमता को भी कम कर देते हैं और मिट्टी की उर्वरा जो शक्ति होती है वह समाप्त हो जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं खेती पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। कृषि प्रदूषण से वायु प्रदूषण भी होता है। कई मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर या हार्वेस्ट खेती करने वाले कुछ यंत्र का प्रयोग जुताई में, बुनाई में या कृषि संबंधी गतिविधियों में किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं कुछ हानिकारक ग्रीन हाउस गैसेज यानी हरित जो गैस होते हैं उसको वो उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि CO2 या कुछ और, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं
जो कि ग्रीन हाउस गैसेस में साथ ही साथ मीथेन के रूप में योग्य है, जो कि हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों में एक साथ माना जाता है या उसी के साथ वो कंपोजिशन के रूप में काम करता है और कहीं ना कहीं वो उत्सर्जित होते हैं, जिससे कि मिट्टी पूरी तरह से वायु जो है वह प्रदूषित हो जाती है। नंबर 7, जैव विविधता में हानि। एक पारिस्थितिकी तंत्र छोटे परिवर्तनों के प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं। कृषि उत्पादन में रासायनिक उत्पादों के लगातार उपयोग से मिट्टी और पानी का क्षय होता है और यह जानवरों, पौधों और अन्य वन्य जीवन को प्रभावित करता है, धीरे धीरे पारिस्थितिक तंत्र को बदल देता है और जो जैव विविधता का समर्थन करते हैं या जैव विविधता का कारण होता है, और वहाँ पर जो निवास करने वाले जीव होते हैं वो धीरे धीरे उनकी प्रजातियाँ समाप्त होती चली जाती हैं, जिससे कि जैव विविधता पर प्रभाव, दूरगामी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट में आते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, कृषि प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण एक और बड़ी समस्या है। जैसे जैसे कृषि कार्य का संचालन होता है, कुछ ऐसे अनुचित जल प्रबंधन और सिंचाई, मुख्य रूप से सतह यानी जो कृषि की जो सतह, खेत के जो सतह होते हैं उनका अपवाह यानी कह सकते हैं कि जो बहने का जो आधार होता है, जिससे कि वो फ्लो होता है उनका, भूजल दोनों से जल का प्रदूषण का कारण हो सकता है। उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग भी कभी कभी झीलों या नदियों या भूजल को भी प्रभावित करता है, जिससे कि पानी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट नंबर 9 में यानी जानवरों पर प्रभाव। जब इसकी बात करते हैं तो कृषि प्रदूषण का पशुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चूँकि जानवर फसल की उपज के कुछ हिस्सों का उपभोग करते हैं तो वे कीटनाशकों से बहुत प्रभावित होते हैं और इन दूषित फसलों के सेवन से मर भी सकते हैं। नंबर 10 यानी पौधों पर प्रभाव। कृषि प्रदूषण पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता को भी बदल सकता है, क्योंकि यह स्थानीय पौधों के कुछ हिस्सों के लिए एक समस्या बन जाता है, क्योंकि नई आक्रामक प्रजातियां देसी प्रजातियों की आबादी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं और ये आक्रामक प्रजातियां कीटों और बीमारी को ले जा सकती हैं, जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से मैंने इन सभी पॉइंट को एक एक करके बताया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके प्रबंधन के बारे में, यानी जो एग्रीकल्चरल जो अपशिष्ट पदार्थ है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसके प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।